Hello, can you please switch on the camera also? If it is comfortable for you. Am I visible? Yeah, you are. Uh, okay, Samaksh, we can start now. Just wait for another 2-3 minutes so that Uh, other students can also join. okay, sure, ma'am. Am I visible? Hello, Ajay sir, am I audible? Yes, you are Yes, audible. yes.
Ma'am, shall we start Yes, now? Because yes. Samaksh, Yes, sir. Good afternoon, everyone. Hope you all are safe and doing good. I, Samaksh Namdev from Trinity Institute of Professional Studies, would like to welcome Honorable Dr. R.K. Tandon, Chairman TIPS, Dr. Barka Behel, Director TIPS, Dr. Sashi Bala, Professor and Principal Law Department TIPS, and Mr. Gagandeep, Registrar TIPS. All the teachers and the students to the third day of lecture series organized by the Department of Journalism and Mass Communication. Here, you will get a chance to grab knowledge from experts. And not only this, you can even interact and ask your questions with them. We all are aware about content writing, and many of us love to write, and even I do, but may not have deeper knowledge about it. So today we have our guest lecture on online journalism, News Never Sleep by Alok Sen Sharma, who is a senior sub-editor at Jagran New Media. He is a defense and military enthusiast. In addition to defense, political or crime are the other genre in which he always interested. And he is an alumni of batch 2016 to 19. Now, I requested to Dr. Barka Behel, Director TIPS, to share her thoughts with us. Thank you so much. Good morning, my dear colleagues, students, and our distinguished guest today, Mr. Alok Sen Sharma. During these lecture series, this is the third day, and I hope that the sessions which were being attended by the students earlier were fruitful, and today also the knowledge which will be shared by Alok Sen Sharma will be beneficial for all of you. Keeping today's demand, digital transformation, plus the environmental changes which are there, under the forced circumstances wherein we are working, and looking at the new normal, online journalism has become a very and is playing a very important role to keep all of us updated with whatever is going on in the market. Right. Now, what I wanted to say is that with the market convergence and digital transformation, as online journalism has taken its place and it is being available globally, it is paperless, it can reach to anyone very fast. We need to keep into consideration certain guidelines and norms whenever these types of news are there on online platforms. And what I expect from Mr. Alok Sen Sharma is that if he can highlight on certain values and ethics which we need to follow. And in addition to that, what I wanted to add is that with this online journalism, and avenues have been opened for various other parameters also, be it the growth of business, we are talking about economy, we are talking about advertisement and marketing, or any business related aspects are there, or whatever international communications are going on. So keeping all these factors, it is very, very important that no news should be fake news, and society should be benefited with the news which is being spread online. In today's generation, young generation, it is basically observing and is on online platforms only. But under these four circumstances, the customers have increased. No doubt, the lot of customers have increased during these pandemic times, and they have shifted from paper to paperless media, and they are watching all videos, journalism, whatever news is there. So keeping all these things in mind only, today's session has been kept. And there has been, you all will observe, and
are experiencing a paradigm shift from the beginning to till date, that in these over so many years, and in this last 2 years, there has been lot of change being observed in these journalism. So with keeping all these things in mind, we have kept this session today, and I hope that with the lecture being delivered by Mr. Alok Sen Sharma, all the students will be benefited with it. And I once again heartily welcome Alok Sen Sharma, who is our alumnus and is of batch 1619. And I once again wholeheartedly welcome you, Mr. Alok, and thank you for sparing time for this session. And I thank all the team members which were involved in organizing this event. Last but not the least, a big thanks to our chairman, Sir R.K. Tandon, who has provided us these platforms and is encouraging all of us all through to conduct such events. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your involvement. Now it's time to invite our guest, Mr. Alok Sen Sharma, to enlighten us with his knowledge. Hello everyone, good morning. And first of all, I would like to thank Trinity for inviting me for this lecture. And believe me, it's an honor for me as well. And I always loved my college, so it's a kind of honor that you guys have invited me for this talk. So without wasting any time, I would like to begin with our session, online journalism. So you might have heard a lot about this term online journalism or digital journalism. So let me tell you in recent, Eve, that journalism, which is anything, any news which is on internet, can be termed as online journalism, can be a part of this online journalism. It can be a hardcore news, it can be a soft news, it can be anything. Social media, your apps like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, even TikTok, they all are a part of this online journalism. Let me be very clear. These all are part of online journalism and play a huge role in this. You might have also heard about a term known as SEO, search engine optimization. So SEO also plays a very important role when you talk about online journalism. In our company, we have different teams like SEO team, SMO team, social media team, digital team. These all are different teams and they all play a huge part when it comes to online journalism. So first of all, let me tell you about what is journalism. See, just remember this. Whenever journalism is telling a story, it's all about telling a story. It might be about anything. It can be about anything. You might tell a story of a murder. It might be about a positive news, or it might be about this pandemic. Hey, just remember this term. Just remember this, that telling a story is actually journalism. Nothing more, nothing much more than that. So when you are writing, when you are telling a story, you need to follow certain guidelines. Like you always need to, you just can't write anything. There are certain guidelines which we follow as a journalist. Like you should always check your source. Whenever you are doing a story, you should always check your source, whether that story is correct or not. Second, you should you should always check your source, and you should always check about the pictures, about videos, whether you are using a video in your story or a picture in your story. That should be a correct. That should not be edited, because there are certain guidelines laid down by the ministry, laid down by the central government as well. We need to follow those guidelines. Third, your story should not hurt anyone's sentiments. In India, that is very important.
You just can't write anything which hurts someone's religious or political, or not political, your religious sentiments. That can actually make you in make us fall all in trouble. So that is actually one thing which we always keep in our mind, and we always follow the trends in online journalism. It is very important to follow trends. Like recently this pandemic is going on, so that is one of the trends. Secondly, the trend is about elections. When the elections were going on, the elections was one of the trends, so it was also very important for us. Third, this all new restrictions what are going on by what are laid by the government, that these IT new regulations are also important. And when you are a journalism student, you always follow these guidelines. Okay, so this is all basic. What you are learning is all basic journalism. Okay, and so that always remember two things. When as a digital journalism, you always need to keep in, whenever you are a digital journalist, you always follow certain guidelines. Like you always there are various guidelines laid down by the government which we always follow. Okay, and now I would like to tell you all about the SMOT, social media, which plays a huge role. Recently, I read a study which said that 75% of this Gen Z, which means the people in the age group of 18 to 24, consume their news from social media, from apps like Facebook, from Instagram, or from Twitter, or from even WhatsApp and TikTok. Oh, the people in the age group of 18 to 24 read a lot of these news from these apps. So it is important for an online journalist to be a part of this. When I was in my college, I was not someone who was in a big social media user or this. Believe me, I made my Facebook account when I was in 26, when I was in second year of my college. But now I have a Facebook account, I have Twitter, I'm on every app which you might think, because it has become a part of a profession. And uh, most of the news consumed by especially the younger groups, what we call the Gen Z, people in the age group of 18 to 24, consume the news from this only, this social media. So it has become, media has become a huge part, but it has also become a way to spread fake news. You might read a news that this leader has said something or this, and that might actually cause riots. So here, as a journalist, it has become important while we are sharing a news on social media. It has become very important for us to check whether it is correct or not. Otherwise, Facebook might take against action you against you. Twitter might take action against you. Even YouTube and Instagram are taking action now, because this problem of fake news has become a huge issue. It has led to the death of many people. It has caused riots. It has changed the dynamics of online journalism, because so it is very important while you are sharing something on Facebook or on Instagram, on WhatsApp, you check the source. Checking the source is the golden rule of a journalist. You always check the source. If you heard a news that
there's a bomb blast in Delhi. You will check that from our reporters, from various sources. There are various sources to check news. As a journalist, the basic way to check a news is through reporters. Every organization have their own reporters. They have their correspondents. They have the various teams from where you can check the news. So checking news is the basic rule when you are a journalist. Second, SEO. SEO plays a very important role in online journalism. Um, it's actually search engine optimization, which many of you might learn about in your 6th or 5th semester, if I'm not wrong. You all whenever you are writing a story or publishing a story, it should be SEO friendly. SEO friendly means you should target the keywords. Like if it's a story on coronavirus pandemic, so this should be, you should use keywords like coronavirus news or like coronavirus India news or coronavirus crisis or COVID-19 crisis. Or if it's on lockdown, you can use keywords like Delhi lockdown or lockdown in Delhi. So SEO also plays a huge part in online journalism. SEO plays a huge part in online journalism. I hope you guys don't have any question. You can always ask me if you have any question or if you have any kind of any doubts. If anyone of you want to ask anything to Alok, you can ask in between also, and you can simply raise your hand. Hello, I have a question here. Can you hear me? Yes, Ashwin, we can hear you. I have a question. As you just said कि अभी जो generation है हमारी वो सबसे ज़्यादा news social media platforms से ले रही है. So how reliable these platforms are and to identify fake news. Sorry, ma'am, क्या कहा आपने? I'll repeat the question. Ma'am is asking that most of the younger generation is getting the news from online sources. तो कितना reliable है sources वो और कितना relevant है वो news? That is actually a debatable question. That is actually a debatable question. And कल ही मैंने एक Reuters की study पढ़ी थी that said that 75% of this Gen Z generation and people in the age group of 18 to 24, 25, they consume news from online sources. Whenever you consume the news from online, it's actually on it depends on you that आप उस चीज को रीचेक करते हो या नहीं. काफी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो खाली जिनका काम ही है फेक न्यूज स्प्रेड करना. I'm really sorry I'm using these words, but it's actually a fact. जिनका काम है, and ये हर organization में काफी ऐसा होता है that our editors tells us कि you're checking the source or not. इसके लिए Facebook से जब भी आप न्यूज कंज्यूम करते हैं, बेसिक रूल है आप हमेशा चेक करें रिसोर्स को, whether it's a credible website or not, whether it is credible or not. This और आप जिसने भी वो न्यूज शेयर की है, you can actually ask them कि उन्होंने कहाँ से शेयर की है, whether they have rechecked it or not. You can report it and all. If a news is even काफी बार ऐसा होता है कि किसी credible source ने अगर न्यूज शेयर की है, if it's recently अभी मेरे साथ ही हुआ था example, I was reading a Times of India story, but later I found that story was fake. So even a brand like Times of India can make mistake. So that's why online journalism में आपके लिए काफी, आपके खुद के लिए काफी important है that you recheck news, recheck your source
प्राइमरी सोर्स कौन है आपका, आप हमेशा उस चीज को अगर चेक करेंगे ये, देन आपके साथ कभी इशू नहीं होगा. बट फेसबुक में अदरवाइज फेसबुक और ट्विटर इट्स एक्चुअली डिबेटेबल, वेरी डिबेटेबल इशू. Okay. I think Samaksh has a question. Oh, Samaksh, we have a question from Ansh. Ansh has a question, sir. Ansh, you can. हेलो सर, माय नेम इज अंश एंड सर आई हैव वन क्वेश्चन दैट अभी आजकल के हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में सर एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि हम लोग की जो मीडिया है काफी बाइस्ड है. अगर 304 पे कोई चीज गवर्नमेंट के प्रो में बता रहा है तो 305 चैनल पे उसके अगेंस्ट में बता रहा है, और दोनों रेपुटेटेड चैनल है ऐसा नहीं है, तो आदमी खुद कंफ्यूज हो जा रहा है कि हम किसकी सुने. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट बताऊं कि यूपी में बहुत सारी जब डेथ हुई थी तो लोगों ने उसकी पिक्चर्स कैप्चर करी थी, तो उसके सामने वॉल बना दी गई थी कि आप उसकी पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते. बट दैनिक भास्कर ने एक नया इम्प्रोवाइज ऐड करा, उन्होंने ड्रोन शॉट्स कैप्चर कर लिए थे ऊपर से चलती हुई डेड बॉडी के. तो क्या सर कुछ इंसिडेंट आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट की हम लोगों की भी वॉइस दबाई जा रही है कि हम लोग एक्चुअल ट्रूथ नहीं दिखा सकते हैं, भले ही वो बहुत सारे रीजन दे दिए जाए कि नहीं वहां पे वायरस स्प्रेड हो रहा हो या कुछ और. मुझे पता था ये क्वेश्चन मेरे से रेस किया जाएगा, गिवन द कंडीशन हम जिस टाइम पे रह रहे हैं. मुझे पक्का उम्मीद थी, I was 100% sure that someone will raise this question. See, I'll tell you one thing. Whenever you are working with an organization and आपके हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा ना थोड़ा टिल्ट तो रहता ही है. Whether even if a journalist is covering a story, उसके भी हर ये थोड़ा बहुत टिल्ट रहता ही है. वो किसी ना किसी एंगल के साथ हमेशा उस स्टोरी को दिखाएगा. He can't be 100% unbiased. Let me be very clear. हर किसी का थोड़ा बहुत टिल्ट रहता ही है. It's not just कि किसी ने हमारी आवाज दबा रखी है या कोई हम पे प्रेशर डालता है. ये हर किसी के साथ भी होता है. जैसे I'll tell you a recent incident with one of my colleague. हम दोनों ही एक स्टोरी कवर कर रहे थे, तो मेरा प्लान था कि हम लोग इस स्टोरी को एक दूसरे फॉर्मेट से कवर करेंगे. बट मेरा कलीग का प्लान था कि हम इस चीज को दूसरे फॉर्मेट से दूसरे तरीके से कवर करें. तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ हो, एक न्यूज किसी ने किसी एंगल से कवर कर रखी है और किसी ने किसी दूसरे एंगल से कर रखी है कवर. ये हर जगह हो सकता है. ये सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जागरण में ऐसा होता है ऐसा नहीं होगा. ये आपका इंडिया टुडे या फिर किसी एनडीटीवी या टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी आप उसमें जाएंगे, हर न्यूज को 2-3 तरीके से कवर कर सकते हैं लोग, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है. एक चीज याद रखना, एक ग्लास आधा ग्लास, अगर एक ग्लास में पानी है वो आधा खाली भी होता है, वो आधा भरा भी होता है. इट्स जस्ट आप उसको किस एंगल से देखते हो. Okay, thank सर आई you. हैव वन मोर क्वेश्चन सर, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी दैनिक भास्कर का ही था, जैसे उनका एक रिसेंट एग्जांपल था, उन्होंने एक मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट अप करा, तो उस मिनिस्टर ने कह दिया कि ये मेरे को आंसर नहीं पता, तुम जाकर के उस बंदे से पूछो. सो द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने उस बंदे का फोन नंबर ही प्रिंट कर दिया था हेडलाइन पे. तो क्या ऐसी एक्टिविटीज भी हम लोग कर सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट की? हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने नहीं, अगर आंसर नहीं किसी ने करा. आपको नंबर दिया है, अगर आपको किसी मिनिस्टर ने आपसे ये कहा है कि आप उस बंदे से XYZ से पूछिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस एक मीडिया एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके उस XYZ पर्सन से खुद पूछे जाके एंड उससे पूछे. अगर वो कहता है कि आप ये न्यूज प्रिंट कर दीजिए बट डोंट टेक माय नेम, तो आप उसको क्रेडिट दे के ये एनोनिमस करके, आपने काफी एक सेंटेंस काफी जगह पे पढ़ा होगा, people sources on condition of anatomy or anonymous sources said this, आप वैसे उसको क्रेडिट कर दीजिए. अगर जो आपने अपना इंसिडेंट बताया दैनिक भास्कर ने किया दैट उसने प्रिंट ही कर दिया उसका नंबर, तो इन माय ओपिनियन दैट इज एथिकली नॉट करेक्ट. आप उसको पूछ सकते हैं दैट आपका क्या ओपिनियन है, मिनिस्टर ने ये कहा है, आप इस पे क्या वो देना चाहते हैं. आप यू कैन प्रिंट दैट बट यू जस्ट कांट प्रिंट किसी का नंबर ना. आपने किसी का नंबर ही प्रिंट कर दिया एंड दैट इज एथिकली नॉट राइट इन माय ओपिनियन. इसका आप किसी और से पूछेंगे शायद हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन भी हो,
इसी रेप बात पे। Ansh, do you have any question? Done with questions. Uh, Sir, I think Tulika, they have a question. Tulika? Uh, good morning, sir. I'm Kataka, and as you were talking about the online news, the digital media, I have a question. Like in WhatsApp, we see a lot of fake news coming around, and people are forwarding it by tagging it in. Through the pandemic, also, I have received many news which are not true. So how will we curb it? Like, we as journalist students know about it. We know we have to recheck the news every time we see something which might be a dicey. But how to tell people around it? Even like people were saying that लहसुन खाने से आपको कोरोना हो जाएगा, या फिर बहुत सारी ऐसी न्यूज आई हैं. So how will we tackle it to tell people that yes, we can like say no I'll to tell that? you, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया तुलिका। ये काफी एक्चुअली लंबा प्रोसेस है फैक्ट चेकिंग का, एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल डिफरेंट फैक्ट चेकिंग टीम्स होती है। लाइक इन जागरण वी हैव विश्वास न्यूज, लॉट ऑफ यू माइट आल्सो हैव हर्ड अबाउट विश्वास न्यूज, जहाँ पे लोग खाली फैक्ट चेकिंग का ही काम करते हैं। फैक्ट चेकिंग इतना भी इजी भी नहीं होता है काफी लोगों के लिए, बट वो डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे सपोज आपके पास ये एक न्यूज आई, ये लहसुन खाने वाली कोरोना ठीक हो जाएगा, आप सिंपल उस चीज को गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। गूगल से जाइए, आपको काफी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट मिल जाएंगे। हो सकता है किसी ने उस पर स्टोरी भी की हो फैक्ट चेकिंग की। अब एक ये एग्जांपल हो गया, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास किसी का कहीं से एक इमेज आई दैट दिस पर्सन वाज किल्ड एंड दिस इन दिस प्लेस, एंड ये हुआ, एंड बेसिकली काफी भड़काऊ टाइप की इमेज है, रॉयट्स वो इंस्टिगेट करने के लिए। आप आपने एक टूल का नाम सुना होगा, गूगल रिवर्स इमेज टूल। यू कैन यूज दैट, इट्स वेरी सिंपल। आप गूगल पे कहीं पे भी आप जस्ट हाउ टू यूज गूगल रिवर्स इमेज टूल आप लिखेंगे, तो आप उसको यूज करके आप एक इमेज का पता लगा सकते हैं दैट वेदर इट्स इमेज इज अ फेक और नॉट। सिमिलरली आप यूट्यूब वीडियोस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सो फैक्ट चेकिंग इट्स अ लेंदी प्रोसेस, काफी जैसे काफी लोगों के लिए तो ये काफी डिफिकल्ट चीज हो जाती है। बट अगर आपके पास ऐसे कभी भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे न्यूज आती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक इट ऑन गूगल। बेस्ट इज आप गूगल पे जाइए, आपको डॉक्टर्स के स्टेटमेंट मिल जाएंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट मिल जाएंगे, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री के भी गाइडलाइंस वहां पे आपको मिल जाएगी। सो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। Hello. Tulika, do you have any question? Thank you, sir. No more questions. So sir, जैसे कि आपने बताया था कि आप मिलिट्री एंथुसियास्ट हैं, तो ये चीज आपको इस फील्ड में कैसे हेल्प करती है? किस मैनर में हेल्प करती है? आप कितना पंचुअल रहते हैं इस चीज को लेकर, तो कितना हेल्प करती है एज अ जर्नलिस्ट आपको? आपने अगर जर्नलिज्म प्रोफेशन चूज कर लिया है अपने लिए, तो हमेशा याद रखना आपके लिए कभी भी न्यूज कभी भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। वो 24/7 वो कभी भी आ सकती है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। मेरे साथ काफी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है दैट मैंने रात को 12 बजे या फिर सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के भी न्यूज कवर की है। एंड अगर आप प्रिंट में जैसा होता है, प्रिंट में तो काफी एटमॉस्फेयर आपका काफी इजी गोइंग रहता है, वहां पे न्यूज आती है, बट वो मेनली उनका काम एक्चुअल वर्क जो स्टार्ट होता है वो रात 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है, व्हेनेवर दे स्टार्ट प्रिंटिंग द न्यूज एंड ऑल। ऑनलाइन जर्नलिज्म या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में आपको हमेशा अपने 24/7 अपने टोज पे रहना पड़ता है। न्यूज कभी भी आ सकती है। मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं सो गया था एंड रात 12 या 1 बजे मेरे सीनियर का मेरे पास कॉल आ रहा है दैट इट्स इम्पोर्टेंट एंड यू विल बी कवरिंग दिस। तो आपको मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। अभी जैसे एक साल होने वाला है गलवान वैली क्लैश का। आई रिमेम्बर जब वो न्यूज आई थी,
रात 12 बजे इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया था दैट 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स वर लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट क्लैश। तो रात 12 बजे हम लोगों ने उसको कवर किया था। आई नो तब मोस्ट ऑफ द लोग सब इंडिया में सो चुके होते हैं रात 12 बजे, अब कौन न्यूज पढ़ता है, बट स्टिल whenever you are in this profession, you will have to be ready for 24/7 365 days, even on your week offs। काफी बार ऐसा होता है मैं अपने वीक ऑफ पे भी काम कर रहा होता हूँ। So, sir, anyhow, is there anything which will irritate you? Sorry? सर, इज देयर anyhow किसी चीज से आप कभी इरिटेट हुए हैं इस चीज से कि जब आपने ये प्रोफेशन में आए स्टार्टिंग में आपने अपने आप को बिल्ड किया होगा ना इस चीज को लेकर? हाँ, सी स्टार्टिंग में मुझे भी काफी इश्यूज आए थे। स्टार्टिंग में सबको इश्यूज आते हैं। आप जब भी कहीं कुछ नया स्टार्ट करते हो विच एक्चुअली अ चैलेंज फॉर यू, तो आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। मैं सर स्टार्टिंग में ये जब मैं शुरू का 6 महीना मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ काफी इश्यूज आए थे। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कैसे एक न्यूज को कवर करूं। एंड मुझे मेरे सीनियर से काफी बार आई यूज्ड टू हिट लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम देम एज वेल कि तुमने ढंग से नहीं कवर किया। सो बट दैट्स हाउ यू लर्न। आप वैसे ही धीरे धीरे आप वैसे ही काम सीखते हो। स्टार्टिंग में शुरू के 6 महीने में तो काफी बार मेरे दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते थे दैट इज इट द राइट प्रोफेशन फॉर मी, इज दिस द थिंग which I really want to do, but then again मेरे अंदर हमेशा से एक इच्छा थी, अगर कोई मुझे चैलेंज करता था तो I always used to accept that challenge instead of running from that or this है। मैं हमेशा एक्सेप्ट करना पसंद करता था एक चैलेंज को, मुझे अच्छा लगता था। इनफैक्ट आज भी मुझे काफी अच्छा लगता है अगर कोई मुझे ये बोलता है that you can't do this and I prove them wrong। So yeah, starting में it was irritating, but then हेलो सर। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम एज अ बडिंग जर्नलिस्ट हम इस फील्ड में आए हैं सर, कई बार क्या होता है कि हमें किसी के लिंक से जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड तो हम इस चीज को कैसे मेंटेन करें कि अगर हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एंड इंटरव्यू लेने के बाद हमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना, एंड साथ साथ ही हमें उस सेकंड पर्सन को भी कंफर्टेबल फील कराना है ताकि हम एक अच्छा इंटरव्यू दे सकें। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें चीजें पता नहीं होती, हम क्लैशेस बहुत आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आज भी मुझे इंटरव्यूज लेने के लिए काफी मैं जाता हूँ तो मुझे भी नर्वसनेस होती है। एंड हो सकता है सामने वाले पर्सन को भी नर्वसनेस हो रही हो, अगर वो कैमरा के आगे आ रहा है या आप उसका रिकॉर्डिंग, इवन टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो भी उसमें हो सकता है दैट सामने वाला इज नर्वस। इस टाइम पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप खुद काम रहिएगा। आपको खुद काम रहना है। अगर आप ही नर्वस हो गए तो सामने वाला इंटरव्यू आप जिसका भी ले रहे हो वो खुद भी नर्वस होगा। तो सबसे पहले आप काम रहिए। एंड किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले ना इट्स इम्पोर्टेंट आप सामने वाले की हिस्ट्री पढ़िए, उसका बायोडाटा पढ़िए, वो क्या है, उसके पुराने इंटरव्यूज देखिए। मैंने एक बार कीर्ति आजाद का इंटरव्यू लिया था, विज दिल्ली कांग्रेस चीफ, बिफोर दिल्ली इलेक्शंस 2018 नहीं सॉरी 2020 में आई गेस, before Delhi elections। तो I read about him, I watched his earlier interviews and उसने क्या क्या बोला था। आप उससे एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। एंड काफी बार इंटरव्यूज के लिए ऐसा होता है दैट आप पहले ही क्वेश्चन भेज देते हैं दैट वी विल आस्क दिस क्वेश्चन। आप इंटरव्यू लेने वाला आप उसको आप अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लीजिए। एंड ऑलवेज बी पोलाइट whenever you are asking a question, even if it's a debatable question, even if you know that सामने वाला आपको क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं देगा, you always need to be polite with him or her। It's a golden rule। ये 3-4 चीजें होती है। courtesy, आप किसी के साथ बड़े प्यार से बात कीजिए, आपका इंटरव्यू हमेशा अच्छा होगा। बट अगर आप किसी के ऊपर अपने व्यूज लेट मी से अगर आप किसी के अपने व्यूज अपने उस पर एनफोर्स करना चाहते हैं दैट नहीं आप यही बोलिए, देन ये आपके लिए भी इशू हो सकता है। नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपको इंटरव्यू देने से भी मना कर दे। Okay, sir. So, is there anyone, any curious mind who are willing to
ask your doubts. So you can now go ahead and put your questions in chat box and raise your hands. Is there anyone? Samaksh, I guess Kritika has raised her hand also. What, ma'am? Kritika has raised her hand. Kritika Lamba. Yes, Kritika, go ahead. Hello, good morning, sir. So my question is like we have been recently reading a lot about political pressure over the media houses and in general on journalists as well. So what are your views on that? Is how to deal with that, even though there are times where journalists get pressurized by the politicians and they do publish the news in their favor. So by sticking to the laws, how can we deal with this? जैसा मैंने पहले भी कहा, आप हमेशा whenever you are writing a story, आप उसको एक unbiased way में प्रोड्यूस कीजिए. हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं. अगर वो स्टोरी किसी को आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करने का भी हमेशा एक वे होता है. आप उस वे को स्टिक करके रहिए, आपको कभी कोई इशू नहीं होगा. इवन आई राइट अ फ्यू स्टोरी जो काफी लोगों के अगेंस्ट में मैं लिखता हूँ, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमेशा यूज कीजिए. ये फॉर्मेट आप हो सकता है एज अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट आपको अभी ना समझ में आए, बट आप जैसे जैसे आप इंटर्नशिप्स करेंगे या आप जैसे जैसे जॉब्स में जाएंगे, आपको पता लगना आप स्टार्ट हो जाएगा. क्रिटिसिज्म का भी अपना तरीका होता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आप लोग हमेशा न्यूज पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, आपको पता लगेगा कि क्रिटिसाइज कैसे करते हैं लोग. एक अपना एक जिसे कहते हैं तमीज में आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसको वैसे करेंगे आपको इश्यूज नहीं आएंगे. बट या काफी जगह पे एम्बार्गो भी होते हैं दैट यू जस्ट कांट पब्लिश दिस. तो अगर वहाँ पे अगर एम्बार्गो है या फिर किसी ने आपसे कहा है या इवन ऑर्गेनाइजेशन का भी समटाइम्स प्रेशर होता है दैट यू जस्ट कांट राइट दिस ऑन दिस. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के बिकॉज अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं. जागरण के अपने अलग हैं, जागरण के काफी अलग है. मैंने जब इंडिया टीवी में अपनी इंटर्नशिप की थी या हिंदुस्तान टाइम्स में करी थी, उनके रूल्स भी अलग थे. तो उस सेट ऑफ रूल्स को हम हमेशा फॉलो करना होता है. कोड ऑफ एथिक्स हर उसके अलग होते हैं. तो या वो सब आप फॉलो करेंगे, आपको इशू नहीं आएंगे कभी. Sir, Abhishek has a question. Abhishek, I think Samaksh, we can take the questions in the chat box now. Okay. We have one question. I have received one question on the chat box that Alok, Aditya Kumar Singh is asking that, sir, what's your take on the new IT guidelines for social media that government has recently given? Social media like WhatsApp is refusing to agree on that. So is this guideline is a threat to social media right now? I won't say a threat because WhatsApp के भी अभी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके काफी इश्यूज हुए थे. अभी भी उसका हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में उसके हियरिंग्स चल रही है. तो आई वोंट से कि इट्स अ थ्रेट टू सोशल मीडिया बिकॉज सोशल मीडिया उसको भी आपको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस चाहिए होंगे. ये आज नहीं तो कल आपको हमेशा चाहिए होंगे. तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ थ्रेट, बट यस आपको सर्टेन गाइडलाइंस हमेशा चाहिए ही होते हैं आपको किसी भी चीज को कंट्रोल में रखने के लिए. अदरवाइज फेक न्यूज को आप कैसे कंट्रोल करोगे? Exactly. I think Aditya, you have got your answer. So much we can continue. If anyone has a question, you can ask in the chat box. Otherwise, we can move forward. so is there anyone? So please put your question in the chat box. Sir, I have one more question for me with you. कि हम एज अ रिपोर्टर अगर हम बाहर जाते हैं तो जो नॉर्मल आम आदमी जो होता है वो कभी कभी डरता है हमें चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि शायद हम उनको एक वो कंफर्टेबल फील नहीं करा पाते या उस चीजों से डरते हैं. तो हमें उन चीजों से किस तरह से डील करना चाहिए? आपका सबसे पहले जरूरी होता है आप किसी से आप उसको कॉन्फिडेंस में लो जाके अपने, आप उसके साथ एक
पोलाइट रह के आप किसी से ये आप उसका कॉन्फिडेंस जीतो। ऐसे नहीं कि आपने अपना माइक उठाया और आप सामने जाके किसी के पास शुरू हो गए कि ये हुआ है, यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर। सी आपको एक पर्सन, आप अगर सपोज आप मेरा ही इंटरव्यू ले रहे हो एंड मेरे सामने एक ब्लास्ट हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं उस टाइम पे किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में हूँ। मैं उस टाइम पे आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा या नहीं। आपको उस चीज को, अगर आप अपने जिसका भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, आप हमेशा उसके साइकोलॉजिकल उसको समझो, दैट वो कैसे आपके साथ डील, आपको उसको साथ कैसे डील करना चाहिए। आप किसी के साथ ब्लंट होके जाके आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछने लग जाओगे तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज एथिकली रॉन्ग, एंड वो आपको आपके अकॉर्डिंग कभी आंसर भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा, इट्स बेटर आप किसी का साइकोलॉजिकल वो समझिए, आप उससे पोलाइट होके आप क्वेश्चन पूछिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बट आपको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में लेना है सामने वाले को। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे, ये आपके साथ हमेशा प्रैक्टिस के साथ ही आता है। जर्नलिज्म ना, देखिए, एक ऐसी फील्ड है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, जो आपको कोई लिखना सिखा नहीं सकता, आपको कोई इंटरव्यू लेना सिखा नहीं सकता। वो चीज आप जैसे जैसे खुद देखते हो आपको वैसे वैसे रियलाइज होती है। दैट्स व्हाई आप लोगों के लिए, आप जैसे लोग हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप जितनी ज्यादा आप लोग जर्नलिज्म उसमें करेंगे, आपको उतना अच्छा आइडिया होता रहेगा। आपको वैसे वैसे आइडिया मिलेगा कि कैसे लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। एक लिखने का स्टाइल होता है। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे साथ जब काफी इंटर्न्स वगैरह आए थे, तो काफी इंटर्न्स ऐसे थे जिनको इंग्लिश आती थी, दे नो हाउ टू राइट और वो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट उनको लिखना नहीं आता था। उनको स्टोरीज देते थे हम लोग, तो उनको आइडिया था कि उनको करना क्या है, बट वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एंड धीरे धीरे वो लोग भी, 1 महीना वो लोग मेरे साथ इंटर्नशिप की, उन्होंने 2 महीने की, 3 महीने की, उनको आइडिया होने लग गया दैट कैसे कैसे लिखते हैं या कैसे कैसे एक न्यूज को प्रेजेंट करने का क्या स्टाइल होता है। मेरे साथ भी इशू था जब स्टार्टिंग में 6 महीने का, मेरे साथ भी काफी इशू होता था कि मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कैसे उस चीज को प्रेजेंट करूं। बट धीरे धीरे आई कैन राइट। अब मुझे कोई इशू नहीं होता है उस चीज को करने के लिए। Okay, Alok, I think I have a relevant question to this internship thing only. Ansh is asking that in this pandemic time, internships are on a shortage thing. Okay? There is a shortage of internships. So how can the students learn even if they are not getting internship? अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है सर, तो बेस्ट वे है आप न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए। अगर आपको राइटिंग का शौक है, आप न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए। न्यूज़पेपर्स रीड करना एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होती है, एंड इसके अलावा भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के आपके पास डिफरेंट तरीके। आप बुक्स पढ़िए। मैं जब कॉलेज में था, आपने तो सर देखा ही, आपके साथ ही था, तो आप हमेशा देखते थे मेरे हाथ में एक बुक होती थी हमेशा। तो बुक्स रीड करना हमेशा काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स रीड करना इंपॉर्टेंट है। अगर समवन इज इंटरेस्टेड इन वीडियो और एडिटिंग थिंग, आप फोटोशॉप सीखिए, आप प्रीमियर प्रो सीखिए। तो उस चीज को अगर आप नॉलेज बढ़ाने के, मेरा एक मानना है कि नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं। 3 इडियट्स का डायलॉग था सर, ज्ञान मिल रहा है कहीं से भी लपेट लो। वही है, अगर आपको इंटर्नशिप भी आप नहीं सीख कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप बाकी चीजें आप देखिए, आप अपनी जनरल नॉलेज पे काम कर सकते हैं। Okay. I'm getting a lot of questions for the students are sending it directly to me. So I think I have a question from Prachi. So you said that you a journalist have to work 24/7. कभी भी call आ जाता है, and that is a part of a job, whether it is in television or in print media or on online journalism.
So Prachi wants to ask how you manage to get a balance in professional and personal life. That is actually a very difficult question to answer because काफी बार ऐसा होता है प्रोफेशन मैनेज करना पड़ता है आपको, या तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में करोगे या आप अपनी पर्सनल लाइफ में करोगे। तो ये भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। काफी आप अगर आप इंडस्ट्री में हो तो एक चीज होती है, आप किसी को नो नहीं बोल सकते। आप अपने सीनियर को नो नहीं बोल सकते। एंड इफ इट्स अ ब्रेकिंग, तब तो सपोज जब सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी, उस दिन मैंने 12 घंटे काम किया था ऑफिस में, अब रात 8 बजे उनकी डेथ हुई है, तो मुझे मालूम है कि वो मुझे कवर करना ही है। तो ये होता है, बट धीरे धीरे आप खुद ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है दैट कैसे आप पोलाइटली नो बोल दो कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा उस टाइम पे। बट इफ इट्स अ ब्रेकिंग थिंग देन आपको वो करना ही पड़ेगा। Yeah, it is a part of a job. You get used to it. पार्ट ऑफ अ जॉब। Okay. Another question from Abhishek Mehto from first year, that he wants to ask that how do you ensure that your work is factual or not? Like, do journalism organizations take risks with their news content? And if yes, then what is the mentality which makes you to take risks? रिस्क, Yeah. सी रिस्क आप किसी भी चीज के अगर आपको लेना है तो आपको हमेशा अपने एडिटर को वो लूप में रखना पड़ेगा। अगर आप इफ यू आर डूइंग अ कंट्रोवर्शियल स्टोरी, तो आपको हमेशा अपने एडिटर को लूप में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ये स्टोरी करने का मन है एंड इट्स कंट्रोवर्शियल तो मैं कर लूंगा अपने मन के अकॉर्डिंग। मैं उस चीज के लिए अपने एडिटर को हमेशा लूप में रखना पड़ता है मुझे। अभी रिसेंटली आई एम प्लानिंग कि मैं फॉर्मर RNAW चीफ विक्रम सूद का इंटरव्यू लूं। आई एम प्लानिंग दिस, बट उसके लिए भी मुझे अपने लूप में रखना पड़ेगा अपने सीनियर को दैट मैं उनका ले सकता हूँ या नहीं, बिकॉज ही इज समवन हु इज कंट्रोवर्शियल, ही इज समवन जो शायद इंटरव्यू इतनी इजीली ना भी दे, एंड हो सकता है वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे जिससे बाद में जाके इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने सीनियर्स को लूप में रखना पड़ेगा रिस्क लेने के टाइम पे। I think next one is a very critical and a very interesting question. Utkarsh Pal from first year wants to ask that have you ever faced any problems or political pressure or from your seniors if you are publishing any article or working on any story? Personally, I have not felt that kind of pressure अभी तक, टच वर्ड अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है, बट आई डोंट नो, हो सकता है कभी बाद में आए। Okay. Anna wants to ask that what's your take on media houses not reporting major news regarding our region, like for instance current situation of Lakshadweep, which is in top priority and not even there for many news columns, uh, or when there are floods in Assam, they weren't reporting on many channels. So is there anything जैसे आपने आपने पहले बोला था कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है एक तरफ से, तो ऐसा कुछ होता है कंटेंट के लिए कि हमें वो चीज अवॉइड करनी है या नहीं करनी? कंटेंट के लिए इस टाइम पे एक्चुअली पता है क्या होता है, आप कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपना टारगेट ऑडियंस देखती है, वो हमेशा अपना टारगेट ऑडियंस देखेगी ही देखेगी कि वो न्यूज उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको नंबर्स देगी या नहीं। ये एक फैक्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन एट द दैट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो यस, काफी ऐसा होता है, असम फ्लड्स का आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया, काफी उसने कम किया था, किसी इशू चल रही नजर है नहीं, तो दैट इज एन इशू। बट उस चीज का वहां पे हो जाता है दैट आप एक एथिकली आप एक जर्नलिस्ट उसके खुद के उससे सोचे कि दैट वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। Okay, I have one more question from Kanupriya. So she is asking that everyone
there's a notion that being a journalist and becoming a journalist, the journey is very struggling. So is that true? Or have you faced any that struggle की बहुत ज़्यादा problem आती है किसी इंडस्ट्री के अंदर जाने में? आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाइए, आप या तो मीडिया उसके जाइए, आप मास कॉम में इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट कीजिए, या फिर कुछ भी, वो आपको बेसिक इश्यूज हमेशा स्टार्टिंग में आते ही आते हैं. मेरी जागरण न्यू मीडिया में मैं जागरण इंग्लिश टीम का पार्ट हूँ. वो स्टार्टअप था. अब कंपटीशन अलग लेवल का होता है, तो इश्यूज थोड़े बहुत आते हैं, बट वो आप 1-2 महीने में आप उसके साथ यूज टू हो जाते हैं. आपको समझ में आने लग जाता है कि कैसे किस चीज को हैंडल किया जाता है एक सिचुएशन को. हर सिचुएशन का एक हैंडल करने का वो तरीका होता है. वो आपको स्टार्टिंग में नहीं, बट जैसे जैसे आप एक फ्लो में आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम का, तो यू विल गेट एन आइडिया. I think Sagarika ma'am also wants to ask one question. Yes, sir. Hi, sir. Sir, actually काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं. बीइंग अ रिपोर्टर, आप कोई भी स्टोरी कवर करने से मना कर सकते हैं? एंड इफ यस, तो आपकी जॉब में कोई इसका इफेक्ट होता है या नहीं? कोई स्टोरी कवर करने से मना मतलब? आई डोंट गेट योर पॉइंट. कोई भी आपको स्टोरी मिलती है, अगर आपको लगता है कि आपके एथिक्स के खिलाफ है या कोई भी और रीजन के से आप मना कर सकते हैं वो स्टोरी कवर करने से एज अ रिपोर्टर. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्टोरी कवर करने के लिए दी है, तो बीइंग अ रिपोर्टर आप मना कर सकते हैं उसे? At the end of the day, if you are working for an organization, आप उसको मना नहीं कर सकते. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कीजिए, आप उसको, आप अपने सीनियर्स को कभी नो नहीं बोल सकते. इफ दे से अगर उसमें से नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज एंड आप उसको अपने पर्सनल उसके लिए कवर नहीं करना चाह रहे हैं, दैट इज एथिकली रॉन्ग. You can say no कि नहीं, I am not interested in covering in this, but at the end of the day you will have to cover it, either this way or that way. You will have to cover that. Okay, sir. Okay, fine. Thank you. सर, आई हैव टू ऐड अ क्वेश्चन इन दिस सर कि आप अपने एडिटर को कैसे मैनेज करते हैं किसी स्टोरी को कवर करने के लिए? क्योंकि कई बार एडिटर मना कर देता है कि स्टोरी नहीं कवर करनी चाहिए, बट लेकिन आपका इंटरेस्ट है उसकी स्टोरी को करने में, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं कि अपने I have एडिटर to को convince her. बनाते हैं? मैं कन्विंस करता हूँ अपने सीनियर को. कन्विंस करना पड़ता है आपको दोस्त. आप जैसे अपने सीनियर को कन्विंस करोगे. अब सपोज ऐसा था, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. मेरे बॉस ने, मेरे सीनियर ने मुझे कवर करने को दिया था बिग बॉस, एंड आई एम समवन जो एंटरटेनमेंट कभी देखता भी नहीं था. ट्रस्ट मी, मैं हमेशा से एक ऐसा पर्सन रहा हूँ जिसको पॉलिटिक्स, न्यूज, इन सब पे इंटरेस्ट था. एंड एकदम से मुझे दे दिया गया था बिग बॉस, एंड वो उन्होंने मुझे जानबूझ के दिया था ताकि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल सकूं. तो यस, पहले मैंने उनको कहा कि नो सर, और I politely said no sir, I can't cover this, but at the end of the day मैं कवर कर रहा था. एंड ट्रस्ट मी, पूरा सीजन मैंने बिग बॉस 13 का कवर किया था, which was a different experience for me, but ठीक है, वो करना पड़ता है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के भी. Okay, I think we'll take 2 or 3 more questions. I think you have to leave also. So Dimple Ahuja also wants to ask that with social media becoming the most popular platform for news-related content that reaches the public first, so her question is that in these modern times, many individuals turn to social media for creating and posting news-related content without actually having any knowledge about journalism. And even many of these news articles are verified, but what will happen if only one of these content is invalid but has been circulated many times? Even after, if you delete the post, would these people be liable to answer or not? See, आपका क्वेश्चन है that, if I'm not mistaken, आपका क्वेश्चन यही है ना that कोई someone if he doesn't have knowledge about journalism and वो किसी न्यूज़ को शेयर कर रहा है and that is fake, they are liable or not? See, No. यहीं पे Hello, the thing is that if I'm not from journalistic background and I have posted something which is a fake news, and after getting
कि वो बहुत फेक न्यूज़ है और थोड़ा सा हंगामा हो गया है और मैंने वो डिलीट कर दिया, तो आई बी लायबल फॉर दैट और नॉट, बिकॉज मैं तो पोस्ट डिलीट कर दिया, तो शी वांट्स टू आस्क दैट आई थिंक। Yes, you are liable for that. If you are spreading a fake news, आप उसके आपने उसको बिना चेक किए स्प्रेड किया, आपने उसको अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर किया without checking it, without checking the source of that story, then you are liable for that. Ethically, you are liable for that. You are responsible for that. Okay. Nafisa also wants to ask that what if my values and learnings on journalism clashes with my superiors' years of experience on journalism, which might be wrong as per her? Are we gonna compromise on values or what? अगर आप ये काफी अगेन इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, ये अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर मेरे पास ये चॉइस आती है दैट अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना है एंड अपने वर्क के साथ, तो मैं कभी ऐसा अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल है, लेकिन काफी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे दैट जो प्रेशर में आके अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट ये आपके ऊपर है दैट आप किसी अपने वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। अगर आप कभी भी अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपको कभी इश्यूज नहीं आएंगे। इंडिया में जो हम बात करते हैं फेक न्यूज, बायस मीडिया, अगर सब अपने अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दें तो आई फील दैट वो इशू सॉल्व हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग अभी हम कितने क्वेश्चंस और ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू रश आल्सो। बट अगर एक दो क्वेश्चन और ले सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई नो बच्चों का काफी। Chetan sir, he's a professor with our department. He wants to ask that at this time in India, are journalists playing their roles honestly? Do you think? Are journalists playing their roles on? At this time in India, are journalists playing their roles honestly? What do you think on that? वहीं पे मैं फिर एक बात कहूँगा कि हर किसी का अपना अपना वैल्यू, अपने अपने व्यूज होते हैं। मैं एक चीज आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं होता है दैट वो 100% अनबायस्ड हो। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही इज हैविंग हिज डिनर एंड ही इज इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वाचिंग अ न्यूज, उसकी भड़ास निकल ही जाती है किसी भी चीज के ऊपर। तो या काफी हद तक होता है दैट काफी लोग जानबूझ के अपना, आई हैव सीन देम, one of my colleague who is not working with me, I won't take his name, but उनका काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कुछ चीजों को लेके एंड वो जानबूझ के उस चीज को कवर भी अलग तरीके से करते थे दैट जिससे बाकियों के साथ उनके काफी क्लैशेस भी होते थे। तो बट ये आप पे डिपेंड करता है एक जर्नलिस्ट होके कि आप कितना अपने वैल्यूज को फॉलो करते हैं। मतलब इसी से रिलेट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर मैं अपनी वैल्यूज आगे रख रहा हूँ तो डोंट यू थिंक कि मेरी आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जाएगा एंड पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत आता है। वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज कि आज इस जर्नलिस्ट का मर्डर हो गया महाराष्ट्र में एंड कर्नाटक में, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है और बैक ऑफ द माइंड डर रहता है अगर हम ऑनेस्टली वो चीज कवर करेंगे तो। यहाँ पे वही आता है डिबेटेबिलिटी इशू है, आप कितना अपने वैल्यूज को स्टिक कर सकते हैं या कैसी सर्कमस्टांसेस है इस चीज पे आप होता है। आप किसी अपने कलीग्स के साथ बात करिए जिन्होंने सिमिलर सिचुएशन पहले ऐसी फेस की है एंड हाउ दे हैंडल्ड इट। किसी चीज को आप अगर अपने उसके साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है आपको आइडिया मिल जाए, हो सकता है आप वो गलती ना करें जो बाकी लोग करते हैं। So we'll take a last question from Papeksha because she was raising the hand and she wants to ask जो हम सब जानना चाहते हैं एज अ जर्नलिस्टिक स्टूडेंट। अगर मैं जर्नलिज्म स्टडीज कर रहा हूँ, मैं भी अपने टाइम पे जानना चाहता था कि व्हाट इज द पे ग्रेड इन जर्नलिज्म, एंड इस पेंडेमिक टाइम में स्पेशली क्या पे ग्रेड चल रहा है एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड सैलरी। सैलरी का इशू है तो मैं आपको बताता हूँ, काफी पैंडेमिक की वजह से काफी लोग की जॉब्स गई है। मेरे साथ ही हुआ था, मेरे एक सीनियर थे एसटी में, he was in News Nation and he suddenly lost his job due to this pandemic। काफी जगह पे पे कट्स भी हो रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक
पे कट्स वगैरह तो नहीं हुए हैं, ना किसी की जॉब गई है, टचवुड। जागरण इस पॉलिसी में उनका काफी ये था, जागरण एंड टीवी टुडे ग्रुप, दैट उन्होंने किसी को निकाला नहीं ऐसे। बट या अप्रेजल वगैरह लोगों के काफी रुके हुए हैं, काफी लोगों के, इंक्लूडिंग मी। तो Okay. So that is our experience also. दैट्स या बट काफी अब पैंडेमिक में अब वो हर प्रोफेशन के साथ हुआ है। देखिए वो लोगों के अप्रेजल्स रुकना, उनकी सैलरी, पे Exactly. कट्स, जॉब चले जाना, ये हर किसी के साथ हुआ है। That is a repercussion of pandemic. Okay. Thank you, Alok, for taking all the questions. Samaksh, beta over to you now. Thank you, sir, for enlightening us with for the information and showing us this different perspective. With this, I'm really thankful to all of you for maintaining decorum and being a keen listener. So, all right, lovely audience, now it's time for the end of session. But before that, I'm glad to announce that we have a chief coordinator, Mr. Sahil Dhar, for BHMC department for votes of thanks. Hello again, Alok. Okay. First of all, thank you so much कि आपने जो स्टार्टिंग में जर्नलिस्टिक स्टडीज क्या है, कैसे जर्नलिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू टच्ड अ लॉट अबाउट फेक न्यूज। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म में वी हैव सीन दैट फेक न्यूज को फैलने में ज़्यादा मिनट नहीं लगते हैं। वो हम कहते हैं कि एक जंगल की आग है, बहुत तेजी से फैलती है। तो दैट इज द केस विद फेक न्यूज। So thank you for touching all the aspects on online journalism and taking all the questions very patiently. बहुत सारे questions हमारे रह गए and I'll ask because you are also a super senior to them, so they can connect to you easily on Instagram. Yeah, sure. Okay. मेरे साथ कभी And भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, बट आप नंबर्स भी ले सकते हैं। साहिल सर, आप इस अगर किसी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बट या आप कॉल मत करना यार प्लीज, बिकॉज कॉल हो सकता है मैं ना उठाऊं। बट यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, और नॉर्मल टेक्स्ट भी कर दोगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, बट गारंटी नहीं दूंगा कॉल मैं उठा लूंगा किसी का। yeah, because as you said, journalist is of have to be available 24/7. तो थोड़ा सा busy रहता है schedule. So you can get in touch with him. I'll share the contact details. And thank you so much once again, and thank you Barkha man for always being there with our department. And I want to thank all the team members of BGMC department for organizing this lecture series on a very large scale. And I hope everyone enjoyed it, and students get to learn a lot of new things from all the lectures. And one more to go. Hopefully that also goes through. Thank you, everyone. Thank you so much. Yes, Samaksha, over to you. We can have one group photograph. Yeah, you can please switch on the cameras for the group photograph. Sir, is it done? Okay. Thank you, everyone. Thank you for being so patient. Thank you, students. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am.